Okay, with one more questions of text, question number 9, that is 3.9 of chapter number 3. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notice that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction. What is the period T of the bus service and with what speed assumed to be constant do the bus ply on the road? So this is what a question. Let's represent. Okay, this question, how do we get solution of this question? So for that, let's represent. Here we have town A and this is one more town B. Now definitely town here, as it is a question of chapter number 3, we just assume that straight path, but practically town A to B, okay, zigzag path you can think of. So A and B, let's say the distance, okay, displacement, you can say displacement between A and B is fixed, and let's say that is D. Okay, so here one thing is to be assumed, the displacement between A and B is D, right? Now the question is that bus is frequently after every 10 minutes, okay, it is moving from two town A and B. मतलब कि यहाँ से एक बस छूटेगी 3 मिनट के बाद यहाँ से बस छूटेगी. So from both side, both towns A and B, we can say the bus services is there, okay, and one person, let's say person, so person is cycling and with a speed of 20 km per hour in the direction of A to B. So A to B, suppose if we say person velocity is 20 km per hour when he is moving from town A to B. Okay, so this person is observing that, notice, okay, A to B, when he is moving from A to B, okay, after every 18 minutes in the direction of his मोशन, बराबर, मतलब कि जब ये पर्सन जा रहा है ए टू बी, तो आफ्टर 18 मिनट ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग वन बस इज मूविंग आफ्टर एवरी 18 मिनट. सिमिलरली इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज आफ्टर मतलब 6 सेकंड एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि जब ए से बी की ओर जा रहा है, सो आफ्टर एवरी 18 मिनट द बस पासिंग फ्रॉम ए टू बी मूविंग टुवर्ड्स ए टू बी इज नोटिसेस बाय हिम आफ्टर एवरी 18 मिनट. और जब बी से ए की ओर जब बस जाएगी तो आफ्टर एवरी 6 मिनट ही इज ऑब्जर्विंग. दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन. ओके, तो डेफिनेटली हियर वी assume that bus is moving with constant velocity and which is to be given speed, constant speed. तो हम इधर velocity की बात कर रहे हैं क्योंकि person is also moving, तो this is definitely a question of relative velocity. तो अगर हम relative velocity का concept apply कर रहे हैं तो direction is very important. तो हम समझ लेते कि velocity of bus is b, let's say vb, right, and velocity of person is given 20 km per hour. Now this is what velocity of bus. So here we are just assuming velocity of bus. Now when we think about A to B direction motion and B to A direction motion, we will apply the convection, sign convection, right? So here this is to be discuss this particular question is to be क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे कि एक ए टू बी की ओर जा रहा है, तब टाइम पता है 18 मिनट, तो डिस्टेंस तो उतना ही करेगा, ओके, डिस्टेंस इतना ही रहेगा, एंड फ्रीक्वेंटली द टाइम इंटरवल इज गिवन टू यू. तो हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन यही चीज है ना
कि भाई suppose if we apply the motion of bus from A to B, तो A to B जब डायरेक्शन में जाएगी बस की वेलोसिटी और पर्सन की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन से there is a relative velocity of bus with respect to person. तो here velocity of bus with respect to person अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो that will become VB minus VP, right? So absolute velocity with respect to ground is given and that we are assuming actually. So that is what VB minus, अभी साइन कन्वेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस होगा. ये तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ A to B इज गिवन 20, तो VB माइनस 20 हो गया. लेकिन यहाँ पे दिया है कि आफ्टर ही नोटिस आफ्टर 18 मिनट, तो टाइम दिया है, तो टाइम कितना है, टाइम इज गिवन 18 मिनट. अभी दिस इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर में है और 18 मिनट है, तो 18 मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा 18 डिवाइड बाई 60, है ना. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ये होगा ना 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 18 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, तो 18 डिवाइड बाई 16 आवर हो गए, ठीक है. 18 डिवाइड बाई 60 आवर हो गए. तो अभी हमारे पास फिक्स है कि भाई इतनी कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से A टू B की डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया D, ओके, या T समझो, तो डिस्टेंस D या T इज इक्वल टू व्हाट, T टाइम फाइंड करना बाद में, तो डिस्टेंस D इक्वल टू व्हाट विल हैव, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट विल हैव, डिस्टेंस D इज इक्वल टू, वी कैन गेट velocity equal to distance upon time, तो distance is equal to what, velocity into time, तो velocity कितनी हो जाएगी VB minus 20 into time, this time is what 18 divided by 60. Let us give this as equation number 1, ठीक है. So first equation we are getting D equal to VB minus 20 into 80 divided by 60. Similarly, when you think about the motion from town B to A, in that case velocity of bus, अभी बस कौन से डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे, ये डायरेक्शन में बस, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगी VB माइनस VP, ये कंसेप्ट वही लगेगा. लेकिन सपोज अगर हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बस नेगेटिव हो जाएगी, माइनस VB माइनस, ये तो माइनस माइनस VB माइनस 20 ऐसा ही रहेगा ना. बट इफ आई टेक आउट माइनस साइन आउटसाइड, तो VB प्लस 20 हो जाएगा, क्वाइट ऑब्वियसली, क्योंकि जो बस की वेलोसिटी होगी पर्सन के रिस्पेक्ट में अपोजिट होगी, तो वो तो ऐड ही हो जाएगी ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली डायरेक्शन, बट अगर आप मैग्नीट्यूड ले लो तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, ओके. तो हियर आल्सो इंफॉर्मेशन इज दैट द पर्सन इज ऑब्जर्विंग द बस इज पासिंग आफ्टर एवरी 6 मिनट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम दिया है, टाइम भी यहाँ पे 6 मिनट दिया है, तो इफ आई कन्वर्ट दैट इनटू आवर, 6 डिवाइड बाई 60 आवर, ठीक है. तो यहीं पे उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इतना. तो अप्लाइंग द कंसेप्ट डिस्टेंस तो सेम है A टू B या B टू A, ओके. डिस्प्लेसमेंट हम समझ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट वी आर टेकिंग एज D, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन इधर निकल जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VB प्लस 20 into time is what, 6 divided by 60. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इन टर्म्स ऑफ D, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VB minus 20 18 divided by 60 is equal to what will get VB plus 20 6 divided by 60,
तो 60 get कैंसिल आउट ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, इसके बाद क्या हो जाएगा 18 VB माइनस 18 into 2, तो 360 is equal to what will have 6 VB प्लस 6 2 12 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 18 माइनस 6 दैट इज 12 VB, दिस इज इक्वल टू व्हाट 360, इधर चला जाएगा तो 360 प्लस 120 480 हो जाएगा, राइट। तो 480 मतलब कि VB इक्वल टू व्हाट विल हैव 480 डिवाइड बाई 12 दैट इज 40 वाट। वेलोसिटी हमने किलोमीटर पर आवर में कंसीडर किया है, तो किलोमीटर पर आवर मिल गया, राइट। सो बस इज मूविंग विथ वेलोसिटी या स्पीड, कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ एक तो हमको मिल गया स्पीड, राइट, बस की स्पीड। अभी बताना क्या है टाइम, तो टाइम कैसे मिलेगा, यू कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस से वापस वेलोसिटी आप मिल जाएगी वेलोसिटी। तो हियर जस्ट सिंपली अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, कोई भी एक इक्वेशन में हम डाल देते हैं, तो कोई भी एक इक्वेशन में हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सपोज इक्वेशन 2 में हम डाल दिए वेलोसिटी का वैल्यू, तो d इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दिस इज फ्रॉम 2 इक्वेशन 2, तो d इक्वल टू VB प्लस 20, तो 40 प्लस 20 ओके इनटू क्या हो गया 6/10, 6/10 मतलब क्या हो गया 1/10 ओनली, तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 10 दैट इज 6 किलोमीटर, राइट। तो हो गया 6 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वी कैन से हियर। नाउ इनके बीच में टाइम फाइंड करना, तो वेलोसिटी बस की फिक्स है, कांस्टेंट है, VB इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स अपॉन टाइम रिक्वायर। तो टाइम हमको दिया है कि t, तो t इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस, व्हाट इज दैट डिस्टेंस 6 अपॉन वेलोसिटी इज 40। नाउ 6/40 ये क्या आ गया आवर आया, ठीक है ना। आवर को मिनट में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, अभी कैसा मिलेगा 60 मिनट 1 आवर इक्वल टू, तो 60 डिवाइड बाई 40 मतलब 0 0 गेट कैंसिल आउट, 6 6 36, 36 डिवाइड बाई 4 मतलब कि दिस विल बी इन मिनट, राइट। सो 36/4 that means 9 minutes. So after every 9 minutes the bus will be moving from town A as well as from B. So यहाँ से चलेगी वापस 9 मिनट के बाद, तो after every 9 minutes the bus services is bus is moving, we are running from A to B, town A to B. So this is also one of the interesting question based on relative velocity. Hope now you people have cleared the concept of relative velocity.